Work hard, dear students. Today we are going to start parallel lines of class 8 CBSE from the book DAV Secondary Mathematics. So class 8 parallel lines topic, parallel lines from DAV Secondary Maths बुक। इसमें थ्योरी जो पोर्शन होगा वो हम अपने डील करेंगे। तो ये रहेगा पैरेलल लाइन चैप्टर्स। हम लोग अर्लियर क्लासेस में भी पढ़े हैं। तो इससे पहले हम 1-2 दिन वीडियो नहीं बनाए थे, फीवर थी, सो काइंडली क्षमा कीजिएगा। सो नाउ पैरेलल लाइंस। देखिए पैरेलल लाइंस किसको कहेंगे? पैरेलल लाइंस, टू लाइंस इन ए प्लेन means smooth surface. So suppose I am taking two lines, L and M, in a plane. This is the plane of paper, so it is a smooth surface. So two lines are in a plane are said to be parallel if they are produced both the sides. If we will produce L in this side and in this side also, and M in right side and left side also, they will never meet, and their perpendicular distance is same everywhere. Okay, perpendicular distance are same. Here is perpendicular, here is perpendicular, so perpendicular distance are same, so lines are parallel. So here lines are parallel because they will never meet, and they are in the same plane, so called parallel lines. I am not going to the definition. Now transversal is a line which intersect two or more than two lines in different points. Line may be parallel or may not be parallel. जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम दो लाइन लिए, यहाँ पे दोनों लाइन, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। मान लेते हैं ये P है और ये Q है, और एक लाइन ऐसे है T है। ये लाइन जो है P Q को M और N पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये लाइन जो होगा, ये लाइन जो T है, T इज ट्रांसवर्सल के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों लाइन पैरेलल ही हो, पैरेलल भी हो सकते हैं। सपोज कीजिए हम 3 लाइन लेते हैं, L, M एंड N, और इसमें हम ले लेते हैं एक लाइन R जो इसको A, B और C पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ R क्या हो गया? ट्रांसवर्सल हो जाएगा, R ट्रांसवर्सल होगा।
ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल जो लाइन है वो किसी नॉन पैरेलल लाइन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में या मोर देन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में काट सकती है या पैरेलल लाइन को भी काट सकती है। नाउ वी आर कमिंग previous things. Suppose that here I am taking adjacent angle, adjacent angles, adjacent angles. So when the three lines segment or line meet at a point, when the three lines meet at a point, suppose OA, OB and OC, then the angle here, this angle and this angle, this have the two arms OA and OB, and here for this angle ABOC, the two arms are OB and OC. Now here the common arm is OB. तो OB के अगल बगल में कौन सा एंगल बना है? एंगल AOB और एंगल BOC। तो ये जो है एंगल AOB एंड एंगल BOC, यहाँ एडजेसेंट एंगल है, आर एडजेसेंट यानी अगल बगल में बनने वाला एडजेसेंट एंगल्स। since they have common arm, कौन सा कॉमन आर्म? OB, ठीक है। लेकिन अगर मान ले ये तो एडजेसेंट एंगल है, अब हम आते हैं लीनियर पेयर में, लीनियर पेयर, ठीक है। तो लीनियर पेयर में सपोज दैट इफ यू विल टेक ए स्ट्रेट लाइन, if you will take a straight line and a line falls on it, suppose straight line AB I am taking, a line segment I am taking, and OC falls on it. Here the adjacent angle so formed, angle AOC, and then plus angle COB. तो दोनों एंगल मिल करके एक स्ट्रेट एंगल बनाता है, एंड वी नो दैट स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो टू एडजेसेंट एंगल हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री आर कॉल्ड लीनियर पेयर, उसको हम लोग लीनियर पेयर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आ जाएं नेक्स्ट में। सपोज कीजिए एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल when it intersects two parallel or non-parallel मतलब जो पैरेलल नहीं हो, non-parallel lines. So see here I am just taking two lines which are parallel, L and M, and T is a transversal. So now this is intersecting here at the 2 point. Suppose it is M and N, and making angle, suppose this is 1, this angle is 2, this is 3, this is 4, and then 5, 6, 7, then 8. Okay. So now here see interior angles वो होगा जो पैरेलल लाइंस के अंदर में बनेगा या लाइंस के अंदर में बनेगा।
टू लाइन्स जो दिया हुआ है उसके अंदर में कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। और एक्सटीरियर एंगल्स जो कि बाहर बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल्स तो एल और एम के बाहर साइड में बन रहा है। तो 1 2 7 8, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, है ना, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्रॉसपॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का हर पेयर इक्वल होता है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल when the lines are parallel. When lines are parallel, ओके। तो यहाँ पे लाइंस L जो है यहाँ पे पैरेलल है M के, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल 1 का हो गया 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 का हो गया एंगल 6, एंगल 3 का हो रहा है एंगल 7, और एंगल 8 का हो रहा है, ये 4 का हो रहा है एंगल 8। तो 4 पेयर ऑफ corresponding angles are formed. Now they are equal to each other. Now alternate interior angles, alternate interior angles are equal. तो यहाँ पे देखिए इंटीरियर एंगल 3 है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल में आपका 3 4 5 6, अल्टरनेट का मतलब है कि एक छोड़ा करके, एंगल 3 है तो एंगल 4 छोड़िए, एंगल 5 में है तो एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 5 हो गया। तो एंगल 3 एंड एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल, हाँ, और दोनों इक्वल होगा, ये कहलाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लाइंस अगर पैरेलल होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा, अगर लाइंस पैरेलल नहीं होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होगा। तो अब हम लोग का नेक्स्ट है क्या, 4 का देखिए, तो 4 का 3 हो गया, छोड़िए, उसके बाद 6 आ जाता है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। नाउ सर एक डाउट है, अगर 4 है तो 5 छोड़ के 6 भी हाँ, वो हो भी सकता होगा। 4 है तो 5 आप छोड़िए तो तब भी 6 है, आएंगे, या 3 छोड़ 3 छोड़ के किसी एक को छोड़ना होगा, उसके बाद आप आइए। अब हो गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal is 180 degree or supplementary। ठीक है। तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल जो है वो सप्लीमेंट्री होगा। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ कौन कौन एंगल है, तो ट्रांसवर्सल ये है टी, उसके एक ही तरफ जो एंगल्स है वो एक 4 हो गया, ठीक है, और एक आपका 5 हो गया। तो एक ही तरफ का एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। उसी तरह से एंगल 3 है और एंगल 6 है, इंटीरियर एंगल है दोनों, ट्रांसवर्सल टी है, उसके एक ही तरफ, यानी या तो दाहिने साइड या तो बाएं साइड। तो इधर बाएं साइड में देखिए 3 और 6 हो रहा है, तो इन दोनों का ऐड कितना होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल 4 और 5 का सम
एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 और एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट हम लिख देते हैं ऐसे, यही 3 से आपका काम चल जाता है, लेकिन फिर भी एक्सटीरियर एंगल में हम लोग देखें तो अब देखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स, तो एक्सटीरियर एंगल में 1, 2 और 7 और 8 है। तो 1 है तो 2 को छोड़िए, 7 है तो 1 और 7 आपस में बराबर होगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। दूसरा आप देखिए, आप दूसरा में देखिएगा कि अगर हम लोग देखते हैं एंगल 2 है तो 1 छोड़िए, उसके बाद फिर 8 आ रहा है, तो एंगल 2 का एंगल 8 हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो 2 का एंगल 8 है ना, 2 है एंगल ये वाला 2, ये 2 है तो इसका एंगल 8 ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये आपस में बराबर होगा, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। 2 पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हुआ, है ना। अब यहाँ पे और भी एंगल फॉर्म करता है, इसको आप देख लें। यहाँ पे देखिए कि जो फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ही एक तरफ एक एंगल 1 बन रहा है और एंगल 2 बन रहा है। एंगल 1 और एंगल 2 लीनियर पेयर है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। फिर यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ट्रांसवर्सल तो स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ एंगल 1 और एंगल 4 मिला करके 180 डिग्री बन रहा है स्ट्रेट एंगल। तो इनका भी सम लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है तो 180 डिग्री होगा। एंगल 3 और एंगल 4 का भी सम 180 डिग्री होगा। तो इस तरह से होगा। और यहाँ पर 5 और एंगल 6, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर है। 5 और 8 का भी सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर है। 7 और 8 का सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर है। और 6 और 7 का एंगल 6 और एंगल 7 का सम भी 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर है। अच्छा, एक बात आप लोग जानते होंगे कि when the two lines intersect each other, the opposite angles are called vertically opposite angle and they are equal to each other. Suppose that the two lines intersect each other and at a particular point, and the vertically opposite angle, suppose 1, 2, 3, 4. So angle 1 का angle 3 हो गया, ये vertically opposite angles होगा, they are equal to each other. 2 का angle 3 होगा, 2 का एंगल 4 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। तो इस फिगर में देखिए यहाँ पर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये टी लाइन है, ट्रांसवर्सल भी लाइन है और एल लाइन है, दो एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए एंगल 6 एंगल 8 के बराबर, एंगल 5 एंगल 7 के बराबर। बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का भी पेयर बन रहा है, 4 पेयर बन रहा है। यहाँ पे 2 पेयर और यहाँ पे 2 पेयर। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना है और इसी से सारा प्रॉब्लम्स, बहुत सारा प्रॉब्लम्स बन जाएगा। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी ये आपको याद रखना है, बाकी समझ गए होंगे। और कोई भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट, बहुत सारा एंगल अगर, बहुत सारा लाइन्स अगर मिल रहा है तो जितना भी एंगल्स बनेगा, ए सपोज कीजिए, बी, यहाँ सी, डी और ई,
तो अराउंड ए पॉइंट द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये पूरा सर्किल बन जा रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई 5-6 एंगल बनाए हैं हम यहाँ पे, तो 360 डिग्री। तो अराउंड ए पॉइंट द सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। प्रूविंग भी हम लोग देंगे। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द थ्योरम्स रिलेटेड टू इट। इसमें देखिए, जिससे हम लोग का काम बनेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। पहला चीज, इफ ए ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, then पहला तो हो गया each pair of corresponding angles is equal, ये हम लोग जाने। दूसरा, each pair of alternate interior angles is equal, ये होना चाहिए। और थर्ड, sum of interior angles on the same side of transversal is 180 डिग्री। ये हुआ। अगर सपोज कीजिए कि हमको ये दिखाना है कि अगर टू लाइंस है, इफ a transversal intersect two lines. I am not telling that it is parallel lines. Two lines in such a way, मतलब इस प्रकार, in such a way that each pair of corresponding angles is equal। अगर इस तरह से करें कि corresponding एंगल का हर पेयर इक्वल हो, जैसे दो लाइन दिया हुआ है, सपोज करें हम लोग ले लें M और N। ये पैरेलल दिया नहीं दिया है, हम दिखने में कर दिए। जैसे मान लेते हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, ठीक है। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मेजरमेंट बराबर है, ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री है, तो ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर है तो यहाँ पर लाइंस क्या होगा, लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होगा। दूसरा बोलते हैं कि अगर दो लाइंस है इस तरह से और उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, L और M लाइन है और T ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल नहीं दिया है, हमको शो करना है कि पैरेलल है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में से कोई एक एंगल को हम लोग इक्वल दिखा देते हैं, सपोज कीजिए कि ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री हम दिखा दें, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम बराबर दिखा दे रहे हैं, तो दोनों लाइन में क्या संबंध होगा, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ठीक उसका अपोजिट बात है। अगर हम ये दिखाते हैं थर्ड
कि दो लाइन है जो कि पैरेलल हम नहीं मान रहे हैं कि पैरेलल है, उसको शो करने बोलेगा कि पैरेलल प्रूफ कीजिए M और N, उसमें कोई ट्रांसवर्सल है इस तरह से T कि सम इनका सम जो है हम दिखा दें कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सपोज कीजिए ये 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो दोनों का सम क्या हो रहा है, दोनों का सम हो रहा है 120 प्लस 60 यानी 180 डिग्री। तो ये दोनों लाइंस में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर किसी टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, और alternate interior sum of the interior angle on the same side of the transversal is equal to 180 डिग्री होगा। और अगर दो लाइन है उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है और वो दोनों लाइन को हम लोग को पैरेलल प्रूफ करना है, तो या तो हम ये दिखा देंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स दिखा देते हैं तो लाइंस में क्या होगा रिलेशन, ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल दिखा देते हैं तब भी लाइंस में क्या संबंध होगा, पैरेलल होगा। अगर ये दिखा देते हैं कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, इधर दिखा दें या इधर दिखा दें, इन दोनों को सम दिखा दें 180 डिग्री, तो भी हम लोग का लाइंस में रिलेशन पैरेलल हो जाएगा। तो थैंक यू, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड द थ्योरी पार्ट ऑफ द पैरेलल लाइंस। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द प्रॉब्लम्स or worksheet 1 of parallel lines, based on parallel lines. Hope you will understand these things very easily, and you have to remember all these things, and which will be very helpful in solving the problems of parallel lines. And please like, share, subscribe, and please press the bell button. Okay. And please see the complete video from the beginning to end. Thank you. Bye bye.